Okay, ratio and percentages. We did see. I'm first doing with NCERT. Are you fine with ratios and percentages? Last class that we did. परसेंटेज कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है आपके पास? क्या चीज का कंफ्यूजन है, बोलो फिर क्लियर करते हैं। कोई नंबर को कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे, कोई नंबर को परसेंटेज को कैसे, तो एक काम करते हैं, let us if you have some doubt in percentage, so what we do, because there will be doubt, my first advice to you will be that please go through what you call this particular book, RS Agarwal, and let's do exercise. Let's do तो एक दो टाइप के प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है? Let's take one problem, okay? Atreya wanted some revision on percentage, so let's do some percentage revisions. Okay. First type Atreya will do, will convert percentages to fraction. आपको रिवर्स में प्रॉब्लम है, पहले ये वाला कर लेते हैं. Clear है? Percentages to fraction. Right. Let's say we will do from here only. Let's take three problems. 36%. Number two, 120%. Okay, and 0.8%. We have to convert them 0.8%. We have to convert them to fraction. ठीक है? How to convert percentage? This is the easiest one. Percentage means what? Percent means per 100. तो इसको क्या लिखेंगे हम? 36 per 100. Then rest you can do. Reduce to lowest term आप कर सकते हो अपने आप से. Have you understood or not? ठीक है? Ritisha, just can come a little bit on the left side and then have some space to sit. Okay. Have you understood this one? So how will you do this one? ये बोलो. ये कैसे होगा? 120 by 100. Anyone has an issue? Do let me know. और इसको कैसे करेंगे? 0.8 by 100. Now here there is a lafda. 0.8 by 100 and you need to abolish this 0.8. तो इसको कैसे करेंगे? How to abolish this 100? So the way to abolish this point is, इसको 10 dairy milk दे दो, equivalent fraction, इसको भी 10 dairy milk दे दो. कितना हो गया? 8 by 1000. Then you can bring it to lowest terms as you wish. क्या ये चीज आपको समझ में आया? किसमें? पॉइंट कोई तो किया ना, 0.8 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट इस साइड चला जाएगा ना. पर इसको फ्रैक्शन में देना है ना आंसर, पॉइंट में नहीं मांगा है ना. अगला क्वेश्चन वो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी परसेंटेजेस टू डेसिमल्स. इसमें तुम्हारी बात करेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना? परसेंटेजेस टू डेसिमल. सो लेट्स टेक सम परसेंटेज टू डेसिमल. करो 80%, 8%, 205%. दिस इज, अगर कोई सबसे इजी है ना, ये है 80%, 8% एंड 208%, 205%. This is the easiest one. You know why it is easiest? This will become how much? 80 divided by 100. So when you divide by 100, the decimal shifts two places to the left hand side, 0.80. ये कितना हो जाएगा? 0.08. ये कितना हो जाएगा? 2.05. ये समझ में आएगी नहीं? Just don't copy. किसमें? वो 0.8, 0.8 के बाद आपकी इच्छा, आप लिखो नहीं लिखो. Have you understood this or are you just copying it? All of you, have you understood this? How to get decimals from percentages? अच्छा, ये समझ में आया? तो 100 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली. ये चीज क्या हो रहा है? 205 डिवाइडेड बाय 100. 205 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2.05 हो जाएगा. और ये क्या है? ये है 8 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है? अंडरस्टूड दिस टू? आगे बढ़े? चलो थोड़ा और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए. अभी आज जाओगे जब ना, ये लेके चला जाना, व्हाट यू कॉल RS Agarwal लेके चला जाना, so that you can practice some percentage problem. Now next is express fractions to percentages, which he was actually asking. Express fractions to percentage. उल्टा करेंगे अभी. Fractions to percentages. Fraction to percentage. Let's see. Number one, 7 upon 25. 7 upon 25. Okay, how to express it at percent? So
7 upon 25 means we have to do it 7 upon 25 multiplied by 100 and put a percentage mark. So 25 4s are 100, 7 4s are 28%. ठीक है. Number 2 आप खुद करो. 5 by 8. So this will be 5 divided by 8 into 100%. How much will it be? इसके लिए इजी होता है, पहले आप 500 कर लीजिए और उसको 8 से डिवाइड कीजिए. दिस विच परसेंट. सो 8 7 56. दैट मींस 8 6 48 220 8 2 16 440 8 5 40 62.5%. फ्रैक्शंस का आंसर नहीं है, ऊपर देखो ना क्या लिखा है. फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस. ठीक है. 11 by 6 कीजिए. 11 by 6. So 11 by 6 can be written as 11 by 6 into 100%. कैसे हो जाएगा ये? 1100 divided by 6. इजी कर लो थोड़ा सा. 2 से करना करो, नहीं तो एक ही साथ कर सकते हैं. 6 1 is 6, then 550, 6 8 48, then 220, 6 3 will become 18, and then 20, so 18.3%. This is when we are showing the decimals percentages in decimal. If you want to show them as mixed fraction, यहाँ से mixed fraction कर पाओगे? Just do the mixed fraction from here and do the mixed fraction from here. Can you do mixed fraction? करो ना, कितना होता है? Mixed fraction करेंगे तो कैसे करेंगे? अत्रेया 500 को करो, 62 से तो जा ही रहा है. ये लो 500 और 500 को डिवाइड करो किसने से? 8 से. कितना गया? 8 6 48. कितना आया? 2. फिर 20. 8 2 16. कितना रह गया? 4. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 8 into 62 और 4. 8 into 62 is some blah blah, and then add with it 4. और इसको छोटा कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं. 1 by 4. 1 by 2. Sorry. So we can make it 1 by 2 also. Your wish. Are we clear now? Can we go ahead? अच्छा, problems में problem है क्या आपके यार? कौन सा? बोलो ये फ्रैक्शन से वर्ड प्रॉब्लम्स में लफड़ा है. But इसको practice, see we are doing NCERT now, but we have to do it from this book also. तो आप प्लीज ये बुक को मत भूलिए, otherwise आपका हाथ साफ नहीं होगा. So your homework, as you, I actually forgot to tell you, your homework will be, please go to the percentage of this particular book and try solving percentages problem. Because unless and until we solve, we first will do what? We'll first try to have a basic idea of all the 4 topics. What are the 4 topics? Ratio, percentage, then comes discount, and then comes tax नहीं, compound interest and simple interest रहेगा ना. That's some simple and compound interest रहेगा. ठीक है. तो पहले हम आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद एक्सटेंसिव. We still have time to the exam, don't worry. Can I go with discount वाला पार्ट आज पहले? Most interesting, सबसे इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में अगर कोई है तो दैट डिस्काउंट वाला पार्ट है. Are we ready? ठीक है. और डिस्काउंट वाले को फॉर्मूला याद करके your wish आप कर सकते हैं, but if you memorize the formula you will land up in problem because there is every chance that you will forget. Try to understand the story behind every problem. Shall we? Let's start. So how do we start it? Let's. आज बड़ा क्लास चुपचाप है, ऐसा तो होता नहीं है. वहाँ कार्टून बनाया जाए, मिकी माउस बनाया जाए. ठीक है, वहाँ मिकी माउस है, ये हमारा मिकी माउस हो गया. तो इसको हम कहते हैं दिस इज आवर सॉफ्टवेयर. दिस इज आवर सॉफ्टवेयर मीन्स इन अदर सेंस दिस इज माय आर्टिकल. ठीक है, आर्टिकल. तो आर्टिकल का कैसा रहता है दुकान में? इस आर्टिकल के ऊपर ऐसे एक लेबल लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, प्राइस टैग लेबल लगा हुआ रहेगा, बारकोड लगा हुआ रहेगा, जो भी लगा हुआ रहेगा. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इंग्लिश मीनिंग. सिंस अ लेबल विल बी ऑन हियर, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं?
इसको हम बोल सकते हैं टैग प्राइस. We can call it as a tag price because these words come from very old days. Old days mein prices used to be in different form. Nowadays everything has got a sticker mentioned on it. Like if you go to IKEA, every article has a sticker mentioned on it. So tag price means these used to be named for products which used to be tagged. Like when I was young, in those days a television will never have the price mentioned on it. Nowadays you have a TV also with a price mentioned, and it's called tag price. The other thing that can be the name of it would be mark price. Mark price. For example, in our childhood days, when we go to buy a close-up toothpaste, the price of the close-up toothpaste is mentioned on the product's packaging. तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, मार्क किया हुआ है. ठीक है. तो हमारे जमाने में जब हम टीवी खरीदते थे, so we used to like a particular model of the TV and we used to ask the shopkeeper, भाई साहब इसका प्राइस क्या है? Then he will go to an almirah or a shelf and he will take down a file. कौन सा देखा आपने? अच्छा, हाँ, अच्छा, ओनिडा का, सोनी का. कौन सा मॉडल है? T1 4XW. 4XW का हैदराबाद प्राइस. He refers to a list. So another name is list price. Nowadays this list word is almost gone unless and until you are going to hardware stores where you are buying, say, cement or you are buying rods. Those do not have prices tagged on them, so they'll always refer a list and they'll tell you. Even for cars do not have prices tagged on them. Cars are also set by list price. मोटा मोटी बोलने का बात यही है कि this is the price that as a buyer, this is you, है ना? You are what? You are a buyer. जब आप आते हो दुकान में तो आपके जो नैन है ना, आपके नैन सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं. समझ में आया? So our friend Anvita has now gone to the shop and the soft toy is a Mickey Mouse. Mickey Mouse वाला पिलो है. तो सबसे पहला प्राइस क्या देखेगा? टैग प्राइस देखेगा. इतना स्टोरी क्लियर हुआ? ये टैग प्राइस में इसका कुछ ना कुछ एक दाम लिखा हुआ रहेगा. Some prices mentioned, some blah 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 prices mentioned. Once Ankita sees this price, देखते ही Ankita's face becomes like this, because she knows that the price of the Mickey Mouse is too high and there are rare chances that daddy will buy. ठीक है? So story happens that poor little Anvita along with her dad, they start walking out from the shop. Seeing there, and obviously she is sad, dad is also sad. नहीं, ठीक है, चले जा रहे हैं. ये देख के यहाँ पे एक और आदमी है and his name is the seller, है ना? और सेलर क्या हो जाता है? सेलर कहते हैं कस्टमर तो चला गया, है ना? Ultimately this is not for display, they want it to be sold. He is very happy. They say customer तो गया, customer गया. Then he immediately goes there, sir, please wait. क्या चाहिए आपको? बोला वो ये चाहिए था, आपका प्राइस बहुत ज्यादा है. आप आइए ना सर, मैं कर देता हूँ आपको कुछ एक, है ना? बेचना है, आप आइए ना, आपको कुछ एक कर देता हूँ. नहीं बहुत ज्यादा प्राइस है, आप आइए ना बोलते ही अन्विता फिर पापा को चलो ना सुन लेते हैं क्या बोलता है ना? खरीदना तो है, तो आइए ना, चलो चलते हैं. अब शुरू होता है डील. तो अब जो बात बताने वाला हूं उसको गौर से सुनिए. सो हैव यू अंडरस्टूड द स्टोरी दिस मच? अब पूरा चीज कुछ ऐसा है. ये बंबू बनाना सीखिए आप. कहाँ से बनाए? यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे हाँ, कहाँ पे बनाए? यहाँ पे. मिकी को हटा दे अभी, मिकी को छोटा कर देते. मिकी नहीं, अब क्या बनाए? अब तोता बना देते, डक. ठीक है ना? डक के पास से रखा हुआ है, ठीक है? डक भी बड़ा खुश है, मैं तो अन्विता के पास ही जाऊंगी. ठीक है? तो ये वाला डंडा समझिए. ये डंडा जिसने समझ लिया वो ये चैप्टर समझ गया. The first price that you see at a shop is always known as the mark price. लिखिए मत, पहले समझिए. Also known as MP. Have you understood? If you understand this ladder, everything. Did Anvita like this price? No. She went away. Then what did that man say? सेल्स वाला हमेशा बहुत चालाक होता है. सेल्समैन मतलब बेसिकली आप ये समझ के रखिए वो फॉक्स है. ठीक है? फॉक्स है वो क्या बोला? आइए ना. अच्छा बिटिया दुखी है, मैं एक काम करता हूं,
आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूं, डिस्काउंट, दैट मीन्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लोअरिंग द प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट, नाउ दिस डिस्काउंट ही कैन ऑफर इन टू मेथड, either he can straight away say a figure which is known as straight away what is called cash discount, this is a figure, or he can say it as a percentage, okay. Now say suppose this was priced at 100 rupees and 100 rupees Anvita did not want to buy it, so this fellow can actually offer the discount in two ways, 10 रुपए कम कर देता हूं, in that sense he says 10 rupees I am reducing, or he may say 10% कम कर देता हूं. Whenever he says percentage, then you please understand this percentage is on the mark price. Have you understood this part or not? If a shopkeeper says that I am reducing 5%, 5% is on the mark price because there's no other value. Otherwise, how will you calculate mark price? So if 100 rupees was the price, he is reducing how much? 5 rupees. Okay? So once he reduces the discount, we arrive somewhere here. At this place, Anvita will be either happy or unhappy. If she is further unhappy, then please go. शॉपकीपर भी बोलेगा ठीक है नमस्ते, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है ना। और अगर अन्विता खुश हो गई तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है डील, डील, नाउ दे आर रेडी टू बाय दिस। सो फ्रॉम द शॉपकीपर्स पर्सपेक्टिव दिस विल बी नोन एज द सेलिंग प्राइस। समझ में आया? अब ये फिगर देख के मुझे बताओ, अगर मुझे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट को क्वांटिफाई करना पड़ा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अ सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। Look at the ladder. You need not memorize the formula. You just see a selling price is equal to mark price minus discount. Clear? Now, this is the formula. The A version of this formula is SP is equal to MP minus discount. This is when the discount is in figures. When the discount is in figures. If it is in percentage, then we will write SP is equal to MP minus B% by 100 into MP, because the discount is always calculated on the mark price. How many of you understood this? How many of you understood this? Don't be mum, huh? Don't be mum. Answer, because once you start doing problems of RS Agarwal and RD Sharma, गलत होंगे आपके, पहले ही बोल देता हूँ। ये grade 8 का सबसे ज्यादा पेचीदा स्टफ है। If you don't want to understand, if you want to understand, nothing great. मैंने क्या बोला, शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दो तरह से दे सकता है, या तो आपको स्ट्रेट अवे बोल दिया 50 रुपीज डिस्काउंट, जॉब इज वेरी इजी, मार्क प्राइस से 50 रुपीज कम कर दो, और द शॉपकीपर में से दैट राइट नाउ आषाढ़ मासम डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, अभी आषाढ़ मास है, आषाढ़ मासम डिस्काउंट इज 10% फ्लैट, चप्पल लीजिए 10% डिस्काउंट, टी शर्ट लीजिए 10% डिस्काउंट, बाल कटा के आइए 10% डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? तो वो 10% आप किस पे कैलकुलेट करोगे? 10% ऑन द ओरिजिनल प्राइस। This is the discount value. This portion is the discount value. Have you understood or not? Right? So if generally always expect that ऐसे ही आएगा, discount is 20%. So calculate 20% on the mark price and then reduce it from the mark price. That is the price at which you are buying. Deal हुआ आपका, तो ये आपका selling price हो गया। ठीक है? तो अन्विता ने डक को ले लिया। डक को लेने के बाद यही अन्विता का चेहरा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी दोनों का। तो अन्विता का चेहरा अभी हो गया ऐसे खुशी, मैम ना पापा आज से बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, और ये लोग चले गए। हाथ में डक भी ले लियो, डक भी साथ में ले गए, डक इंसान से बड़ा हो गया, डक भी खुश है चला गया, ये लोग चले गए अभी दुकान से। अब जरा इस आदमी फॉक्स के ऊपर देखो, इनके जाते ही रास्ते में अन्विता और पापा डिस्कस करेंगे, जो भी बोलो पापा, अल्टीमेटली अच्छे प्राइस में मिल गया हमें, 10% डिस्काउंट दिया, लक अच्छा था हमारा। एज बायर्स वी ऑलवेज कंसोल आवरसेल्फ, अच्छे प्राइस में मिल गया हमें, वरना तो फुल प्राइस काफी ज्यादा था। जैसे ही आप चले गए, ये वाला आदमी जो है ना, इसका लाइट जलेगा टेओ, और ये भी हंसेगा, यार आज एक बेटी और पापा आए थे, बढ़िया से बेच दिया वो वाला डक, बहुत दिन से नहीं जा रहा था, डक को तो अच्छे से दे दिया, बस मीठी मीठी बातें की, 10% डिस्काउंट दिया। डू यू थिंक दैट ही मस्ट हैव इनकर्ड अ लॉस बाय सेलिंग दिस? नो, नो शॉपकीपर सेल्स एट लॉस।
No shop care. If you are selling at loss, either there is some mental imbalance with you, or you are intoxicated, or some garbar is there. You cannot sell at loss. That means you must have made some profit. So how do you understand whether he has made a profit? That we get to know कि ये आदमी ये डक कितना में खरीदा होगा. ये आदमी ये डक कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदा है. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ऑल्सो नोटेड एज सीपी. समझ में आ रहा है? 10 रुपया में खरीद के 50 रुपए का स्टिकर लगाया, फिर 10 रुपया कम करके कितने में बेचा? 40 रुपीज में बेचा. कस्टमर भी खुश हो गया, और कस्टमर जाते वो भी क्या बोलते हैं? 30 रुपीज कमा लिया जेब में. सो डोंट यू थिंक दिस मच पोर्शन इज नथिंग बट योर प्रॉफिट? हैव यू अंडरस्टूड? सो कैन वी नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? आओ प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. Profit will always be the excess of selling price over cost price. Always. For profit to happen, selling price always has to be more than the cost price. Yes or no? वरना profit तो होगा ही नहीं ना. How can you buy at 2 rupees and sell at 1 rupees unless and until you are idiot? ठीक है? ये हो गया हमारा. So basically this is our formula number 1. This is 1A, 1B. This is formula number 2. Okay? Understood? Now we should also know to calculate what is known as profit percentage. Okay. 2A. Profit as a percent. Okay. Let me ask you a question. I sold a pen for 10 rupees to Ved. Understand my question, huh? I sold a pen for 10 rupees to Ved. How much profit did I make? Very idiotic question I have asked you. How can you tell whether I have made profit or not when you don't know what is the cost price? समझ में आया ना? Cost price. तुम लोग हंस नहीं रहे हो ना? तो थोड़ा हंसने का स्टोरी बताते हैं. Cost price is the basic foundation. So इसके ऊपर एक स्टोरी सुनो. तो आज कैसे मड़ियल सा हो तुम लोग सब. सुनो. You know in court you have people who come and give witnesses. Witness. कोर्ट में बोलते हैं ना witness. गवाह लाइए. तो आगे कैसे बोलते हो? गीता पे हाथ रखे कि ये जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. In court you are never supposed to testify false. That's a criminal offense. Okay. So there was one movie. So there are some people available outside courts normally for all this civil dispute, घर का झगड़ा वगैरह. They are like paid गवाह. आपके केस में गवाह की जरूरत है, मैं गवाह दे दूंगा. पेड रहता है मतलब पैसा दो, कोई भी गवाही दे सकता हूँ. तो ऐसे एक आदमी चला गया कोर्ट में. दिस इज एक्चुअली अ मूवी फ्रॉम अमिताभ बच्चन की एक मूवी से ये सीन है. तो ही गोज एंड ही स्टार्ट्स गिविंग गवाही. सो देयर इज अ फाइट दैट बन्ने मियां नाम से कोई है. बन्ने मियां ने बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस फैला के रखा है, बहुत तोड़फोड़ की है. तो he goes as a false गवाह, सब कुछ कसम उसम खाता है. जज इज आस्किंग हिम, बन्ने मियां को आपने देखा है? हाँ जी इधर देखा है. कैसा है? अरे बताइए मत, गांव में इतना अफरा तफरी करते हैं बन्ने मियां, जहां देखो जिसके साथ लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, यहाँ का चीज वहां फेंकते रहते हैं. तो जज ने कहा आपने बन्ने मियां को देखा है? हजूर बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है. कितने बड़े हैं? हाँ ऐसे तो फॉल्स दे रहा है ना, अभी तो पता नहीं, कभी तो देखा ही नहीं, झूठ बात बोल रहा है. बन्ने मियां कुछ इतने बड़े होंगे? जज इज अगेन आस्किंग, क्या सही है? हजूर इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं, इतना कुछ. अब नाप के तो नहीं देखा है ना, इतना कुछ होगा. देन द जज गेट्स फ्यूरियस ऑन हिम. झूठी गवाही देने के लिए आपको अंदर कर देंगे. आपको पता है बन्ने मियां कौन है इस केस में? बन्ने मियां इस आदमी का मुर्गा है, मुर्गा, हेन, कॉक, जो कि जाके इस गांव में अफरा तफरी मचा रहा है. देन ही सेज, हुजूर अभी हमने तो निचला हाथ लगाया ही नहीं था, आप पहले ही गुस्सा हो गए. बन्ने मियां कुछ इतने बड़े हैं, नीचे का हाथ लगाया ही नहीं था. Still he says that he is correct. तो जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो होता है नीचे का हाथ. कितना प्रॉफिट किया? जब तक नीचे का हाथ नहीं लगेगा ना, तो प्रॉफिट का मेजरमेंट नहीं आता है. प्रॉफिट जानने के लिए
कॉस्ट प्राइस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. Therefore always remember profit is always calculated on cost price. तो अगर हमें कोई बोलता है कि what is the profit percent, so we will write profit means profit percent is always profit over the cost price into 100%. इस फॉर्मूला को और अच्छे से लिखे तो कैसे लिखेंगे? यही सब लोग रट्टू मारते हैं, SP minus CP by CP into 100. रटने की जरूरत नहीं है. SP minus CP क्या होता है? प्रॉफिट ही तो है ना. Profit is always calculated on the cost price. Profit is always calculated on cost price, cost price, cost price. Understood? पूरा प्रॉब्लम में यही सब चीज है. And suppose you have a lunatic seller. Lunatic seller, पागल. उसने मान लो बेच दिया. कहां पे बेचा? उसने बेचा यहां पे. And say suppose he sold the duck to Anvita here, but he had bought the duck here. Means an idiot. In that case, he is incurring loss. Yes or no? How much of loss is he incurring? He bought at 50, he sold at 30. This is the loss he is incurring, isn't it? So this becomes loss. So can we now write the formula for loss? Loss will always be the excess of CP over SP. Loss will always be the excess of CP over SP. When CP is more, loss होने के लिए cost price must be more than selling price. Profit होने के लिए selling price must be more than cost price. समझ में आया? And when you calculate the loss percentage, ये problem number formula 3, loss is also calculated on CP. So this is always loss over CP into 100%, which is equal to CP minus SP by CP into 100%. While doing a problem, if you are calculating profit और आपको profit negative आना शुरू हो गया, then please understand you have goofed up somewhere. You are actually getting loss. Negative profit माने क्या है? Loss है ना. हमारे शहर में लॉस मत बोलना. बेटा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? पापा 2 लाख प्रॉफिट हुआ. बहुत अच्छा, गार्लैंड पहनाएगा. बेटा इस साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ? पापा नेगेटिव 1 लाख प्रॉफिट हुआ. चप्पल खोल के मार रहा है, मतलब लॉस हुआ है उसके बिजनेस में. समझ में आया ना? क्लियर? ये कहानी किसको क्या चीज समझ में नहीं आई जरा बताइए. Did you understand the thing discount? You will always start the problem with this ladder. If you start filling up the data as given in the question in this ladder, you will never goof up. And how the problem will end, you know? Problem तो करना है. You know linear equation. While solving the problem, you will see that while approaching this way, you will find some cost price. And while approaching this way also, you will find some cost price. Both are cost price. So both can be made as an equation and you equate it and solve the problem. Whenever we solve such problems, a same parameter, just like you remember, I am twice as old as my daughter. So the same person's age comes in 2 expressions. दोनों तो अलग अलग एज तो होगा नहीं ना, एक ही एज होगा. एक प्रॉब्लम करें अभी इसके ऊपर. हर बार ये डंडा बनाएंगे. लेकिन anyone who has not understood in online, हर्षित, लक्ष्यन, अन्विता बेटू समझ में आया? ठीक है. Loss is always calculated on cost price. Profit is also calculated on cost price. Discount is always calculated on mark price. Because you ask yourself a question when you first enter the shop. शॉपकीपर ऐसे बोलता है कि सुनिए ना, मैंने ना एक्चुअली 10 रुपए में खरीदा, मैं इस पे 40 रुपए प्रॉफिट करके आपको मुर्गी बना के ना 50 में बेचूंगा, इसलिए मैंने स्टिकर 70 पे लगाया और आपको खुश करने के लिए 20 रुपीज डिस्काउंट दे रहा हूं, अब आप प्लीज 50 दे दीजिए मुझे. आदमी बोलेगा चप्पल खोल के मारू, 10 रुपए में खरीद के तुम 50 में बेच रहे हो. शॉपकीपर विल नेवर शो हिज कॉस्ट प्राइस टू यू. छुपा के रखते हैं, देगा ही नहीं आपको. क्यों दे? समझ में? So when you enter a shop, all you see is the tag price. Like when a person like me goes to IKEA, you know what I hunt for? Only yellow labels. Yellow label in IKEA means a discounted product. Whenever in IKEA you see yellow dangler, that is discounted. Is this any type? Yes, because nobody will sell you at profit. At last, all will take profit. Understood? Tomorrow he will also say that means, sir, the fee that you are charging, you must be teaching much less than that fee and charging more fee because nobody sells at loss.
ऐसे करके मुझे भी बोलेगा, ज्यादा पढ़ाना भी डेंजरस है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? करे कोई प्रॉब्लम अभी? ठीक है, आखिरकार अन्विता को तो मिल गया बतख। बतख समझते हो आप? हाँ, डक। डक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यू डोंट टेल अदर पीपल यू लर्न संस्कृत। पीटना चाहिए तुमको। चलिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे और सारे प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए चलिए चलिए, ओके। हमारे पास एक लड़का है, एनसीईआरटी में लड़कों का नाम बड़ा मड़ियल होता है, कोई डैशिंग नाम होना नहीं है। नाम है राहुल, नाम है सोहन, सुन के लगता है हलवा खा रहा है। सोहन नाम का एक लड़का है, सोहन। सोहन को कैसे बनाए? सोहन को ऐसे बनाते, छोटा सा सोहन, ये है सोहन। ठीक है, हाँ। सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। क्या खरीदा? सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर मतलब ये मत समझिए कि रेफ्रिजरेटर खोलने से एक हाथ कटा हुआ इसके अंदर रहेगा। सेकेंड हैंड मींस प्री लव्ड। नाउअडेज पीपल से प्री ओन्ड, refurbished। refurbished को second, refurbished is also second hand। refurbished we don't know how many hand it is, वो फैक्ट्री में जाके वापस आए। सेकेंड हैंड मींस पहले अन्विता का था, अब हम खरीद रहे हैं। आजकल हाईफाई लोग इसे क्या बोलते हैं? प्री लव्ड। बेच रहे हो पुराना सामान, डायरेक्ट बोलो प्री लव्ड। ओके, सो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग a refrigerator and the refrigerator is second hand। सेकेंड हैंड। हाँ भाई, सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर बाय किया है। कैसे बाय किया है? फॉर ₹2500। ₹2500 में एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर सोहन भाई साहब ने खरीदा है। ठीक है, आगे कहता है देन ही स्पेंड्स। अब रेफ्रिजरेटर सेकेंड हैंड खरीदा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, तो इसके ऊपर उसने रिपेयर का काम किया है। क्या किया है? रिपेयर। ₹500 रिपेयर का काम किया है। ठीक है, एडिशनल खर्चा। और उसके बाद देखो कैसा आदमी है, रिपेयर करके इधर एक बड़ा प्यारा सा सीधा बच्चा मिला था, उसका नाम था वेद। वेद को 3300 रुपीज में बेच दिया। समझ में आ रहा है? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब ये सवाल में आपको पूछता है, सबसे पहले आप ये देखिए क्या इस ट्रांजैक्शन में गेन हुआ? अच्छा, प्रॉफिट का दूसरा another paraibachi or the same meaning word of profit is gain, also sometimes is known as margin. Margin also means profit. Okay, so did you do a gain or a loss? First question, whatever you have done, whether it is a gain, जो भी हो, gain or loss, so you try to find out the gain percent or the loss percent. First find out whether we did a gain or a loss. A gain होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बेचेगा ज्यादा दाम में और खरीदेगा सस्ते में। पर याद रखिए, रिपेयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि वेद विल नॉट बाय अ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। ऑल एक्सपेंसेस, कभी कभी ये रिपेयर भी रहेगा और कभी कभी इसमें ऐसे भी देगा, ऑटो चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग दैट यू पे टू मेक द आइटम, ये कॉमर्स में भी बताते हैं, एनी कॉस्ट इनकर्ड टू मेक दिस आइटम वर्केबल इज अ पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट। जब तक आइटम वर्किंग नहीं होगा, जितना खर्चा आप करोगे कॉस्ट है। समझ में आया? निकालिए। तो व्हाट इज द नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर? नेट कॉस्ट प्राइस इज 3000 एंड हाउ मच डिड यू चेपोफाई इट टू वेद फॉर? हाउ मच डिड यू? 300। सो योर गेन कितना है? तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, निकालो। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2500 ना, 2500। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने का तरीका दिखा देते हैं आपको, कैसे लिखते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर फ्यूचर में अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है? इज हाउ मच? 2500। देन यू ऐड लिखते हैं। रिपेयर्स कितने का किया बेटा? 500। देन वी गेट व्हाट? नेट कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 3000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने का है? 3300। सो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस के ब्रैकेट में एसपी लिख दो और यहाँ पे सीपी लिख दो और लिख दो एज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर इट इज प्रॉफिट, है ना? राइट? तो प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, कितना है?
Profit is equal to SAPA minus SIPA. SIPA minus SIPA is 3000 minus 3300 minus 3000 is equal to 300. ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100%, बट दिस सीपी इज व्हाट? नेट कॉस्ट प्राइस। हाँ, नेट कॉस्ट प्राइस। तो कितना आ गया बकुल? 300 रुपीज ओवर 3000 इज 10% प्रॉफिट। यस और नो? बिकॉज इसका 10% करेंगे तो 1 0 जाएगा ना। तो कितना हो गया? 300 divided by 3000 into 100%. Laddu and laddu gone, laddu gone, laddu and laddu gone, 3 and 3 gone. We are left with 10%. 10% का मुनाफा कमा लिया कौन? सोहन भाई साहब ने। किसको? वेद को चमका के। चमकाना मतलब समझते हो ना? हाँ, शाइनिंग। ठीक है, लिखने का तरीका सीखिए, कैसे लिखते हैं। फर्स्ट यू राइट, बकुल यू नेवर राइट एनीथिंग ना। What is the reason? What is the need to write? Sir, I come to your classes. I love your club, sir. Within next 2 days, again, club membership fees will be due. So I'll pay the club membership fee, and again 1 month I'll enjoy the club. I'm actually thinking of putting up a carom board also here, Bakul, only for you, so that you can go there and play some carom. ठीक है? आजकल टेंशन नहीं, इसलिए बिना टेंशन वाला टी शर्ट लिया है। देखो बस सब ठीक, सब ठीक। कौन सा? मैं ही तो एक भेड़िया हूँ बेटा, है ना? Pritisha, what is a bhediya? What is a bhediya? Bhediya. Hey, you have Hindi as your main subject. You don't know what is bhediya? Bhediya is a 4-legged animal whose name starts with W. It is seen in the woods, and if it comes and attacks you, भेड़िया बोला, भालू नहीं बोला हो। भेड़िया मीन्स वुल्फ। ठीक है, चले आगे। एक और प्रॉब्लम। चलो, हर प्रॉब्लम में कहानी पहले बनाइए, कहानी बनते ही प्रॉब्लम बन जाएगा। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। अ शॉपकीपर, व्हाट कीपर? हाँ, विकेट कीपर नहीं है भाई साहब, शॉपकीपर। शॉपकीपर बनाते पहले पगड़ी लगा के, अरे बैठे हैं हम बेचने। ठीक है, ये है शॉपकीपर। ठीक है, अ शॉपकीपर क्या लिखता है? परचेज 200 बल्ब्स। कितने बल्ब्स? 200 बल्ब्स। ऐसे ऐसे बल्ब हैं, इंटू 200। इतने सारे बल्ब इस शॉपकीपर ने परचेस किया है। ये स्टोरी बड़ा कॉमन है, फिर इसमें से कुछ बल्ब फ्यूज होंगे, फिर लॉस किया है। परचेस 200 बल्ब्स एट ₹10 ईच। क्या समझे? 10 रुपए करके कितने बल्ब खरीदे भाई साहब? 200 बल्ब खरीदे। कितना पैसा खर्चा हुआ उसका? 2000। तेज बच्चा है तुम लोग। 2000। However, out of this, 5 bulbs were found to be fuse का मतलब है क्या? इसका कोई काम है? कोई काम नहीं। 5 bulbs are found to be fuse। ठीक है, और जो रिमेनिंग है 5 were fuse, एंड देन जो रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग होगा भाई साहब? हाँ, 195 इंटू उतना बल्ब। ये देखिए इतना बल्ब। इनको क्या किया? ये हमारा भैया जी जो हैं सेल कर दिए। एट द रेट कितने में सेल किए हैं? 12 रुपया ईच, ₹12 ईच। ठीक है, पूछ रहा है कि ये सब करने के बाद ये भाई साहब का मुंह ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा मतलब क्या है? प्रॉफिट। ऐसा मतलब क्या है? लॉस। हाँ, वो तुम्हारा ही हो सकता है। तुम जैसा दुकानदार ही होगा जो यहाँ पे चैरिटी करने के लिए बैठा है। हम 200 रुपए में खरीद के आगे वाले को भी 200 देते हैं, और घर में हमारी बीवी हमको चप्पल से मारती है कि सारा दिन किए क्या? नहीं, हमने जनता की सेवा की है। ये तुम ही हो सकते हो। अभी ऐसे अच्छे सवाल आप ही के मुंह से आ सकते हैं। समझ में आया? करेंगे क्वेश्चन? चलिए करिए।
कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले नहीं पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? फ्यूज न्यूज से कोई मतलब नहीं है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? कॉस्ट प्राइस है हमारा 200 बल्ब इंटू 100 10 रुपए, तो कितना आया? 2000, ठीक है ना। और टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मतलब ये आपका रेवेन्यू है। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवेन्यू? रेवेन्यू मींस बेटा अर्निंग्स, बोलते हैं ना गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। आपसे टैक्स लेने से गवर्नमेंट को अर्निंग होता है, ठीक है, रेवेन्यू। सो व्हाट इज दिस रेवेन्यू? हाउ मच इज इट? यू गॉट दिस न्यू वर्ड, यू कैन यूज इट लेटर ऑन in your problems. Please use new words. Revenue means आपने कितना कमाया. What is your earning? How many bulbs did you sell? No, you cannot sell 200. और 5 फ्यूज बल्ब कौन? तुम क्या समझते हो? कस्टमर के यहाँ पे बेवकूफ लिखा हुआ रहता है क्या कि वो फ्यूज बल्ब लेके जाएगा तुमसे? कितना बल्ब बेचेगा? रितिशा के लैंग्वेज में ये सारे बल्ब्स कहाँ जाएंगे? Sir, where is the trash bin? ये सब ट्रैश। और हमारे जैसे देसी आदमी की भाषा में क्या बोलेंगे? सर कचरा, कचरा, आई मीन ट्रैश, दे गॉन इन ट्रैश। सो हाउ मेनी बल्ब्स यू कैन सेल? 195 इनटू हाउ मेनी? 12 रुपीस। कितना होगा? 12 5 जा 60 0, 12 का टेबल नहीं आता तुम लोग को। 60 0 6, 12 9 जा 108 प्लस 6 114 का 4 और कितना रहा? 11 कैरी रहा। 12 1 जा 12, 12 प्लस 11, 12 प्लस 10 22, 23। क्या लिखेंगे? एज सप्पा इज ग्रेटर देन सप्पा, देयरफॉर प्रॉफिट, यानी कि हमारे घनश्याम लाल ऐसे हंसेंगे तो प्रॉफिट निकालिए कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 2340 minus 2000, which is equal to 340. Agreed? Which is SAPA minus SAPA. Therefore, profit percent निकालिए is equal to profit over SAPA into 100%. What is the profit? 340 over 2000 into 100। जीरो ने जीरो को काटा, जीरो ने जीरो को काटा, और 2 से 34 को करेंगे तो 17% मुनाफा कमा लिया। अरे घनश्याम चाचा तो खुश हो गए। कितना कमा लिया? 17%, 17% प्रॉफिट। यहाँ क्या देखता है? खुद कर। क्या हो गया? नहीं दिखाऊंगा। कॉपी करते करते ना 2 दिन बाद फॉर्म भरोगे ना, नेम वो भी लिख दोगे जयदीप दास। कॉपी कर रहे हो ना ऊपर से। एक लड़का पहले कॉपी मारते मारते लिख दिया फ्रॉम फिगर 3.2, वो भी लिखा था ना, उसको भी कॉपी कर दिया। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए एक और प्रॉब्लम किया जाए। अगली बार एक लड़की आ रही है, फिर भी देखो अगेन दोज वेरी इंडियन नेम्स, यू नो, मीनू। नाम थोड़ा कैसा क्या, थोड़ा वेस्टर्न नाम करे ना। क्या रखें? ये रोज स्टेला, स्टेला, स्टेला से धोखा खाए हो क्या कोई? स्टेला कुछ भी बोलो। हाँ, और नहीं तो नाम चंपाकली, करेला रख लो। और कोई नाम नहीं आता है? मेगन, ये सब नाम नहीं आता तुमको? वकुल लड़का नहीं है, वकुल लड़की नहीं है। केट, कितने सब नाम होते हैं। चलो एक बार रशियन बना देते हैं उसको, रशियन नाम देते हैं। मिश्का। मिश्का क्या होता है? ये सब रशियन नाम होता है। मिश्का, लिस्का, डेप्का, वो सब पोलिश होते हैं। स्की, इच, रशियन होने से ऑव होगा। वैसे मैं रशियन होता तो जेरिफॉफ डासलोवोव, ये रशियन होता था। ठीक है ना? चलें आगे। मीनू बॉट 2 फैंस। मिश्का, मीनू बन गई मिश्का, मीनू बन गई मिश्का। मिश्का ने क्या खरीदा? 2 पंखे खरीदे। ये है पंखा नंबर 1, 4 ब्लेड वाला पंखा, और ये है पंखा नंबर 2।
ठीक है, ये क्रॉम्पटन का है और ये खैतान का है, 2 फैंस खरीदा। किसने? मिश्का ने खरीदे। फिर क्या किया? फॉर रुपीज 1200 ईच, ये फैन भी 1200 रुपए का, ये फैन भी 1200 रुपए का। चिल्ड्रन, all these jokes that I do with you, see, there is a reason I do this. Don't you think when the problem is presented in a storyline, the problem looks much more easy? ऐसे लिख के करने से, ये आपके स्कूल में ये सब टाइम नहीं देगा, सीधा आपको लिखेगा और कराएगा। ऐसे लिख के करोगे तो हमेशा आगे चल के, अगर आपने फिजिक्स पढ़ना है ना, हमेशा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अ डायग्राम स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो मिश्का ने क्या किया? 2 फैन खरीदे। शी सोल्ड 1, पहला फैन उसने बेच दिया, सोल्ड एट लॉस। आई हाय, लॉस में क्यों बेचा? अच्छा, सोल्ड 1 एट लॉस ऑफ 5%, एट लॉस ऑफ 5%। लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? कॉस्ट प्राइस, याद रखिएगा। और दूसरा वाला किस में बेचा? प्रॉफिट में बेचा। पक्का ये बकुल को बेचा होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट किया होगा, है ना? बदमाश लोगों को प्रॉफिट में बेचना चाहिए। प्रॉफिट एट 10%। ठीक है, हमें सवाल पूछा है कि 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, यानी कि ये हमारा फैन नंबर 1 है, तो आपको पूछा है SP1 कितना होगा, निकालिए। और यहाँ पे लिखा है SP2 कितना होगा, ये भी निकालिए। आगे पूछा है, और फिर पूछा है कि फाइनली बताइए मिश्का का जो चेहरा है, मिश्का should be laughing, should be this। समझ में आ गया? Overall, did she make a profit in the transaction or did she make a loss in the transaction? ये पूरा कहानी कैसे समझ में आएगा? सीपी तो हमें पता ही है, ओवरऑल जानने के लिए हमें टोटल देखना चाहिए। टोटल सीपी कितना आएगा? 2400, है ना? टोटल सीपी 2400। अच्छा चलो SP1 कैलकुलेट करो। SP1, अब सी हाउ आई विल टीच यू इजी वे टू कैलकुलेट SP1। SP1 is what? 5% profit. So first you should compute the 5%, then add with it. Either you can do it this way, or if you multiply this particular item straight away with 1.05 also, the answer will come same, but that will be a little bit tough for you. So let's calculate SP1. So in order to calculate SP1, let's have CP1. CP1 is how much, beta? 1200. What is the profit? No, there's no profit. There's a loss. Loss of how much? 5%. That is 5% of 1200, which is equal to 5 by 100 into 1200. But again, you all are now better students. 1200 का 10% कितना होता है? समझ? 1200 का 10%, 1200 का 10%, 1200 का 10%, just take away 10, 120, तो 5% कितना होगा? 60. How many of you understood this shortcut? 1200 का 10% calculation is the most easy thing. Whenever you do a 10% calculation, 1200 ना, इसका 10% बोले तो 1 0 कम कर दो, 100% बोले तो 2 0 कम कर, नहीं 10% बोले तो 1 0 कम कर। समझ में आया? तो 1200 का 10% कितना होगा? 120, और 5% बोलेगा तो 120 का भी हाफ, 60. Or else if you don't know all these things, then become a super idiot and you can do it like this also. 12 5 just 60. So your loss is 60. Therefore, what is the selling price? The selling price now, since it is a loss, will always be cost price minus loss. So what is it? 1200 minus 60, which is equal to 1000, 1140. अब देखो तो ये वैल्यू इससे कम आएगा, इससे लॉस में। सो SP1 का वैल्यू तो मिल गया 1140। अच्छा, SP2 क्या हुआ? प्रॉफिट में बेचा है, 10% प्रॉफिट, मतलब इसके ऊपर और 120 रुपीज ऐड हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड व्हाट इज CP2 इक्वल टू 1200. हाउ मच इज द प्रॉफिट at 10%? should be equal to 120. If you don't know, then it is 100 then it is 10 divided by 100 into 1200. 0 0 cut, 0 0 cut, so it is 120. So selling price SP2 should come how much? 1320. ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 1320. Now add both of this. शून्यम शून्यम शून्यम, 2 4 5 6 3 1 4 1 1 2. खरीदा कितने में? 2400. बेचा कितने में? So what do we say? Total SP is greater than total
CP. Therefore, Mishka becomes spasiba. That's thank you in Russian. Okay, spasiba. Spasiba means thank you in Russian. So spasiba दे दिया. So that means it's a profit. And how much is the profit? Total of SP minus total of CP. कितना आएगा? 1320 minus, no, not 1320, sorry, 2460 minus 2400, which is equal to 60 rupees. इतना मेहनत करके 60 रुपया कमाया सिर्फ. अब प्रॉफिट परसेंटेज बोलो कितना होगा? Profit percentage would be profit over total cost price into 100%. What is the profit? 60. What is the total cost price? 2400. Agreed बच्चा लोग? Into 100. लड्डू 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 लड्डू. Then 6 10s are 60, 6 4s are 24, 4 2s are 8, 2 20, 4 5s are 20. 2.5% प्रॉफिट. कुछ समझ में नहीं आया? Lakshan, have you done comparing quantities in your school? No. अच्छा. You thought twice, looking this side, that side. I thought भूल गया स्कूल में. So these are only profit and loss. Easy वाले problems है. अभी डिस्काउंट आया नहीं है. We'll do one problem on profit and loss on your own. ठीक है? Note down the datas. Shall I rub this? तो मैं आपको प्रॉब्लम दे देता हूं. मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं, थक गया हूं मैं. इस बार कैसा है? इस बार फिर से शॉपकीपर है. शॉपकीपर बोलते ही पगड़ी बनाइए, फिर ऐसे बैठ के पाँव फोल्ड करवा दीजिए. शॉपकीपर 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 ने क्या किया है? बॉट 2 टीवी सेट्स. टीवी, 2 टीवी सेट्स. अगर टीवी है, 2 टीवी सेट्स, रामायण वाला टीवी है. 2 TV sets, and both the TV sets are bought at 10,000 rupees each. ये भी 10,000 रुपए का, ये भी 10,000 रुपए का. ठीक है, वैसे समझ में आया? इसको मिटा दो. अच्छा चलिए, 10,000 रुपए से 2 टीवी खरीदे शॉपकीपर ने. बहुत भैया बात काम किया है. पहला वाला को इसको बेच दिया आगे. इसमें प्रॉफिट में कितना? 10%. परसेंट गुजराती होने से इस परसेंट को बोलेगा 10%. 10% मुनाफा में बेच दिया आगे. समझ में आया? और दूसरे वाले को लॉस में बेच दिया. इसको बेचा लॉस में. कितना? 10% लॉस में. नाउ फर्स्ट थिंग यू विल थिंक, सर 10% प्रॉफिट 10% लॉस था, इसका मतलब कोई मुनाफा नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही डेटा आएगा. बताइए, घर में जाने के बाद इनका बीवी इनका स्वागत कैसे करेगा? आरती की थाली से या झाड़ू से? आंसर दीजिए. समझ में आया? ओवरऑल ट्रांजैक्शन से. अच्छा, शॉपकीपर का ये ड्राइंग देख के इनका थोड़ा नाम दे दो ना, एक अच्छा लगता है. क्या नाम दे? हाँ, हर चीज में बकुल. रमेश बाबू. गोपाल चंद लग रहा है देखने में. ताराचंद. सेठ है ना भाई, थोड़ा चंद वंद लगाओ, अच्छा लगता है. माणिक चंद, ताराचंद, सामर्थन सन्स. चलो चलो करो. एक को प्रॉफिट में बेचा, एक को लॉस में. ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल के लिए हमेशा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस.
और कितना हो गया? ताराचंद कब से बैठा हुआ है आंसर सुनने के लिए? क्या हो गया? वी आर नॉट डूइंग वेद. व्हाट डिड यू गेट? प्रॉफिट और लॉस? 20,000 not profit. सेम आया? Sir, same. सेम आया? सेम आ गया? किसको 100 रुपीज प्रॉफिट आया? ऐसा आया? चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं कितना है. नेट कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000. इसमें कोई टेंशन है आपको? सामर्थ, तुम तो डूब मरो. ठीक है, अगर 10% प्रॉफिट करेगा तो कितने में बेचेगा? 10% ऑफ दिस मीन्स 1000 रुपीज प्रॉफिट करेगा तो 11,000 will be the SP. Did you understand how I got 11,000? 10% profit means 10% of this is another 1,000 rupees. 10% is and 10% लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 9,000 में. तो कितना में बेचा? 20,000. तो यहाँ क्या आंसर दे? क्या बोले? नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. तो आपको क्या लगता है? नाउ आई विल हैव अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इनका घर में स्वागत कैसे होगा? कितने लोग कहते हैं कि झाड़ू से स्वागत होगा? नहीं, मुझे लगता है झाड़ू से नहीं. खाना नहीं मिलेगा आज, होटल से मंगवा के खाओ. झाड़ू खाने लायक काम तो अभी भी नहीं हुआ है, खाना नहीं मिलेगा. तुम्हारे लिए तो भैया ये और इसकी बीवी दोनों आके झाड़ू मारेंगे तुम्हें, है ना? समझ में आया? अगला एक प्रॉब्लम करें और फिर डिस्काउंट ले चलेंगे अगले क्लास में. दिस चैप्टर आई विल टेक सम टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट एट लास्ट. ठीक है, वी आर एक्चुअली डूइंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ओनली. इसके बाद एक्चुअली टैक्स आ जाता है. सो यहां से एक प्रॉब्लम किया जाए. करोगे या अगले क्लास? कैसा? अगले क्लास ठीक है, आज छोड़ देते हैं. सो इन आवर नेक्स्ट क्लास, हैंग ऑन, percentage from RS Agarwal. This is your task, okay? And in our class we will be going for discount and further P&L problems. This will be what is our plan. हम लोग और P&L प्रॉब्लम्स करेंगे और डिस्काउंट के अभी तक किए नहीं है. विल डू दिस. आप RS अग्रवाल से कौन सा करोगे? परसेंटेज वाले. ठीक है, फंसोगे लेकिन पहले बोल रहा हूं, एक दो फंसोगे तो प्लीज ब्रिंग इट. आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे. वेरी गुड. अंटिल देन बी हैप्पी एंड कैच यू. ठीक है, आते बुक लेके जाना. हाँ चलो, बाय बाय.